Om Shanti. We are from the Brahma Kumaris Raj Yoga Meditation Organization. So, in the recently held Shivratri festival, we have conducted various spiritual programs. And as a follow-up to us to that program, on March 8th, we have the International Women's Day program. So, it being a working day Tuesday, we are conducting the program on March 6th, Sunday. So we have our big facility at Mahadevapuram, which comes under Yadadri region. So the Brahma Kumaris organization is mainly spearheaded by women leaders. So we have sisters and various mothers at various levels within the organization. So they are leading sort of a spiritual revolution. So awakening the divine qualities within the people through the easy practice of Raja Yoga meditation. So the Brahma Kumaris offer free 7-day Raja Yoga meditation course. So all are welcome, irrespective of any caste, creed or religion, to come and learn and practice this easy Raja Yoga meditation. So this gives us a good experience of the true qualities of peace, joy, happiness which is within us. So mostly we generally know we keep searching for this outside, but they are well within our own self. So with this easy 7-day meditation course, you can experience all this within ourselves. So with this motto, the Brahma Kumaris have their branches worldwide in more than 140 countries. And locally also within Hyderabad and Secunderabad, we have various branches offering services to the local people, free of charge. So our courses are all offered free of charge. So all are welcome to take the benefit of this and experience these real qualities of peace, happiness, love, joy within your lives. And as I said regarding this March 6th program, so we will be felicitating various women achievers. And so it is a program wherein we again reflect on the special qualities of women, how they have played an important role in how this world has evolved and to make a better place. So even spiritually speaking, even God says Vande Mataram. So mothers play a very important role in creating a better society. And women, as we know, they are endowed with various special qualities such as love, compassion, forgiving, such qualities which are rare to find in this present world. So this organization is basically led by women, of course, supported by brother communities. So like this is like an initiative to recognize the various contributions women have made towards a better world. So on March 6th, we have a big program at Mahadevapuram. So all are invited, and especially we thank D9 TV Telugu channel who are covering such events and to bring about an awakening among the people about spiritual aspects. Mostly commercial things get coverage easily, but we appreciate this D9 Telugu TV cable service that they are covering such religious and spiritual things. So we thank them a lot, and we hope that all of you will take the benefit of it and visit the various Brahma Kumaris branches to learn the easy Raja Yoga meditation. So Om Shanti. ओम शांति। हम सभी इस सृष्टि पर एक क्रिएटर की क्रिएशन है, हम सब एक रचयिता की रचना है। सो ये रचना पूरा सृष्टि, पूरा दुनिया, जिसमें हम अनेक मनुष्य करोड़ों करोड़ों के अंदाज में बैठे हैं। तो आज के मनुष्य का लाइफ कुछ ऐसा दिख रहा है कि जैसे एक फ्रूट होता है, वो फ्रूट के अंदर जो माल होता है, जो उसके अंदर शक्ति रहता है, तो शक्ति निकल गई है और ऊपर सिर्फ कवर शेल दिख रहा है। मनुष्य के पास आज बहुत कुछ है, बहुत इंटेलिजेंसी है, बहुत उसको मनी पावर है, मटेरियल है। सो आज मनुष्य मटेरियलिस्टिक बन रहा है, वो मैटर के ऊपर बहुत डिपेंड कर रहा है, वो बाहर के स्थूल बातों में चले गया है। जो मनुष्य जो टॉप मोस्ट क्रिएशन है, जो सबसे अच्छा क्रिएचर है वर्ल्ड में, सो जिसमें बुद्धि है, जिसको बुद्धि जीव इंसान का कहते हैं, बुद्धि जीव मनुष्य कहते हैं। तो आज मनुष्य अपने बुद्धि को सिर्फ मटेरियल बातों में लगा रहा है।
मनुष्य का लाइफ बहुत मटेरियलिस्टिक मीन्स वो धन के पीछे है, सुबह उठता है रात तक सिर्फ भागता है। किसके लिए भागता है? कि मेरा लाइफ सुखी रहना, मेरा परिवार अच्छा रहना, मैं सब शांति सुख से जीवन व्यतीत करना। बट रिज़ल्ट में हम क्या देख रहे हैं कि वो इतना भाग रहा है फिर भी उसका अंदर का मन स्थिर नहीं है, मन में कोई रियल पीस ऑफ माइंड नहीं है तो भी टेम्पररी क्षण भंगुर के लिए थोड़ा आनंद, थोड़ा सुख के पीछे। मनुष्य के पास जो रियल शांति चाहिए, रियल सुख चाहिए, सच्चा शांति सुख का जो जीवन चाहिए, जैसे जीवन में हर पल, हर क्षण, हर मोमेंट हम श्वास ले रहे हैं, जीवन सदा है, 4 घंटे का, 4 दिन का नहीं होता है। जीवन माना लाइफ है, ये सदा का लाइफ है। वैसे लाइफ के अंदर अगर हमारे अंदर लाइफ में सुख शांति नहीं है तो टेम्प्ररी सुख शांति है, कुछ क्षणों के लिए पीस है, कुछ क्षणों के लिए हैप्पीनेस है, लेकिन लाइफ तो सदा है। पर आपके पास लाइफ में जो रियल सुख शांति रहना चाहिए वो बहुत टेम्प्ररी हो गया है। तो जैसे लाइफ सदा है तो हमारे पास जीवन में सुख शांति भी सदा रहना है, बिकॉज सुख शांति हमारी इनर प्रॉपर्टीज़ हैं, सुख शांति हमारी ओरिजिनलिटी है। एक ही ईश्वर है, एक ही मालिक है, एक ही खुदा है, एक ही अल्लाह है, एक ही गॉड है, इज़ द ओनली वन। कोई भी धर्म हमें सिखाता है कि परमात्मा परम शक्ति दुनिया का रचयिता केवल एक है। जैसे एक बीज से एक झाड़ आता है, झाड़ तो बड़ा विस्तार को पा लेता है, झाड़ में अनेकों पत्ते होते हैं, फल होता है, लेकिन वो आया तो एक बीज से ना। इसी प्रकार पूरा विश्व बहुत विशाल है, अनेक धर्म है, अनेक भाषाएं हैं, अनेक मतें हैं, अनेक मनुष्य हैं, लेकिन इन सब का क्रिएटर एक ही सुप्रीम एनर्जी है। तो जो क्रिएटर है, जो सबका एक पिता है, परम पिता है, सुप्रीम फादर है, जो ईश्वर है, जो अल्लाह है, जो परमात्मा है, जो सभी का वाहिगुरु है, वो परमात्मा सुप्रीम एनर्जी जब देखते हैं कि ये सृष्टि में इतना दुख, इतनी अशांति, इतने टेंशन, इतने झगड़े, इतने मारामारी, इतनी लड़ाई, इतने फ्रैक्शंस, ये एक परिवार है, विश्व कुटुंब के जैसा है, तो ये कुटुंब के अंदर इतनी सारी द्वेष भावना, द्वेष बढ़ गया है, ड्वेलिंग माइंड हो गया है, अद्वैत्व से द्वैत बन गए हैं। अद्वैत माना जो हमारा पहले एक जैसा मन था, प्रेम था, सबका व्यवहार सद्व्यवहार था, तो अद्वैत्व से हम द्वैत माना ड्वेलिंग में फंस गए हैं। एक बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है, तो ये जो ड्वेलिंग इतनी पैदा हो गई है, फिर से वापस हमें अपनी ओरिजिनलिटी की तरफ ले जाने के लिए वो सुप्रीम परम शक्ति, परम पिता, जो हम सबका परम शिक्षक है, परम सतगुरु है, वो आकर हमें सत्य ज्ञान के द्वारा, सहज मेडिटेशन के द्वारा, इस मेडिटेशन का नाम सहज राजयोग है, इस ज्ञान और योग, रियल नॉलेज, सत्य ज्ञान, सत्य नॉलेज, ट्रू नॉलेज के द्वारा और मेडिटेशन के द्वारा हमारा मन जो इतना स्थूल की तरफ भाग रहा है, इतना अनेक मैटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, और रिज़ल्ट में वो क्या है? रिज़ल्ट में किसी को भी पूछेंगे कि आप हमेशा सुखी हो, हमेशा शांत हो, हमेशा पीसफुल हो, कंटेंट हो, संतुष्ट हो, तो हर एक मनुष्य के पास नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम्स है, नंबर ऑफ़ बातें हैं, नंबर ऑफ़ टेंशन्स है। तो रिज़ल्ट अगर हम देख रहे हैं कि आज मानव का लाइफ कंफ्यूज्ड है, मानव का लाइफ बहुत डिप्रेस्ड है, तो इस लाइफ को वापस अच्छा लाइफ बनाने के लिए हम सबका मालिक परमात्मा, ये ब्रह्मा कुमारी संस्था जो 1936 में स्थापन हुई है, शक्ति, एवर प्योर एनर्जी, परम पिता, इस सृष्टि को वापस परिवर्तन करने के लिए, हर मानव के जीवन में उसकी सच्ची सुख शांति देने के लिए, आपका जीवन सदा अच्छा रहना, आप सबके साथ अच्छे रहना, सबकी दुआएं लेना, सबको दुआएं देना, न किसी का दुख अपने अंदर फील करना, न किसी को दुख देना।
हमेशा सुखी रहना, सबको सुख बांटते रहना। इतना ऊंचा ज्ञान देने वाला एक परम शक्ति परमात्मा ब्रह्मा कुमारी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर सुप्रीम टीचर बन के हमको रोज सत्य ज्ञान सिखा रहे हैं। ये ज्ञान लेना हर एक का जन्म सिद्ध अधिकार है और परम शक्ति, परम पिता, परम शिक्षक हमें ये सत्य ज्ञान बता रहे हैं कि आप तो अपने मन के अंदर ओरिजिनली बहुत शांत हो, आपकी इनर प्रॉपर्टी पीस है, आपका ओरिजिनल नेचर, आपका स्वयं की धारणा, स्वयं का धर्म, हर एक का अंदर का धर्म पीस है। किसी भी इंसान से आप पूछो आपको शांति पसंद है या अशांति पसंद है, तो हर एक का ज़रूर जवाब मिलेगा कि हमको शांति पसंद है। वी नीड पीस, वी लाइक पीस। तो पीस, वाई वी आर लाइकिंग पीस? बिकॉज इट्स अवर ओन नेचर। वो हमारा अपना नेचर है, हमारा स्वभाव है, हमारा स्वयं की धारणा है। धारणा मीन्स धर्म। धर्म माना कोई बाहर का धर्म नहीं है। धर्म का असली मतलब है हमारे अंदर की धारणा। हमारे अंदर की धारणा पीस है, शांति है। तो परम शक्ति, परम शिक्षक हमें कहते हैं कि आप वापस अपने पीस में आ जाइए। कम बैक टू योर ओरिजिनलिटी। आप अपने ओरिजिनलिटी की तरफ आ जाओ। आप पीस हो, आप हैप्पीनेस हो, आप प्योर एनर्जी हो, आपका रियल जो गुण है, आपकी रियल जो नेचर है वो संतुष्ट रहना है। आपका रियल नेचर सुखी रहना है, आपका रियल नेचर पीस में रहना है। जैसे पानी को कितना भी गर्म करेंगे तो वो बॉयल हो जाता है, लेकिन जब उसकी गर्मी से उसको दूर कर देते हैं वापस उसका नेचर है ठंडा हो जाना। बिकॉज पानी का ओरिजिनलिटी है शीतलता, वो कूल होता है। लेकिन गर्मी के साथ जब संग में आता है तो वो, लेकिन जब गर्मी से दूर होता है तो वापस अपने ओरिजिनल नेचर में आ जाता है। इसी प्रकार हम जो भी इंसान हैं, जो भी धर्म में हैं, जो भी भाषा बोलते हैं, कहाँ पर भी हम रहते हैं, लेकिन हर इंसान ओरिजिनली पीस है। हर इंसान का नेचर पीस है, हर इंसान का नेचर हैप्पी रहने का है। तो हम सब वापस अपने ओरिजिनल नेचर में कैसे पहुंचना, ये दुनिया की बाहर की मटेरियल बातों में फंस के हमारा नेचर गर्म हो रहा है। हम इतने क्रोधित हो रहे हैं, क्रोध में आके हम क्या क्या नुकसान कर रहे हैं। लेकिन वापस हम अपने ओरिजिनल नेचर में आना है। हम अपनी सत्यता को पहचानना है, हम सेल्फ को रियलाइज़ करना है। जब हम खुद को पहचानेंगे तब हम खुदा को पहचान सकते हैं। आज हम इंसान खुद से ही दूर 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 भाग रहे हैं। जितना खुद से दूर भाग रहे उतना अनेकों प्रॉब्लम्स में फंसते जा रहे हैं। तो परम पिता परमात्मा हमें ये सिखाते हैं, आप खुद के पास आ जाओ, खुद को देखो, खुद को परिवर्तन करो। स्वयं के परिवर्तन से सारा विश्व परिवर्तन हो सकता है। लेकिन इंसान का एटीट्यूड कैसा बन गया है, खुद की गलती को हम छिपाते हैं, दूसरे के गलती को पॉइंट आउट करते रहते हैं। दूसरे की गलती बहुत दिखती, खुद का परिवर्तन हम भूल जाते हैं। तो पहले हमें स्वयं का परिवर्तन करना है। हमारे परिवर्तन से ही हम दूसरों का परिवर्तन अपने आप कर सकते हैं। हमें देखकर ही दूसरा चेंज हो सकता है। तो हमें एग्जाम्पल बनना है, हमें सिर्फ थियरी नहीं देना है, हमें प्रैक्टिकल लाइफ में चेंजेस लानी है। लेकिन चेंजेस लाने के लिए हर एक इंसान की इच्छा है कि मुझे अच्छा बनना है, मुझे बुराई से दूर रहना है, मैं अच्छा इंसान बनूं। लेकिन अच्छा बनने के लिए चाहिए एक ही पावर, और वो पावर देने वाला एक ही सुप्रीम है। मुझे अच्छा बनना है, बुरे से अच्छाई के पास आना है, लेकिन उसके लिए मुझे आई नीड पावर। तो पावर कौन देगा? ज्ञान तो दुनिया में बहुत है, लेकिन पावर देने से सहज राजयोग के द्वारा, प्राचीन राजयोग, एंशंट राजयोग जो भारत में परमात्मा सिखा रहा है, जो ज्ञान और सहज राजयोग ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के थ्रू, ब्रह्मा के माध्यम से परमात्मा ने जो सिखाया हुआ राजयोग है, ये 1936 में स्टार्ट हुआ है। और ये संस्था अभी 86 ईयर्स से पूरे विश्व के कोने कोने में ओपन टू ऑल, नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, लैंग्वेज। हम सब एक हैं, एक परमात्मा के बच्चे हैं और हम सब शांति के इच्छुक हैं। तो हम सब
उसी सच्ची शांति को अपने लाइफ में वापस लाना है और अपने रियलिटी को पहचानना है। जब हम रियलिटी को पहचानेंगे तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई। हम सब एक की रचना है, हम सब ब्रदर्स हैं और हम सबका क्रिएटर एक सुप्रीम फादर है। तो हम जब एक कुटुंब जैसा बन जाएंगे तो सब दुनिया के लड़ाई झगड़े, टेंशन, ये सब मारा मारी, ये सब ख़त्म हो जाएगा और वापस इस सृष्टि पर परमात्मा ने जो महावाक्य बताए हैं, भगवानों वाच्य भगवान कह रहे हैं कि बहुत जल्दी यह सृष्टि कलयुग से सतयुग में परिवर्तन होगी। ये कब होगी? जब हम स्वयं बदलेंगे, खुद बदलेंगे तो जग बदलेगा और ये जग बहुत जल्दी बदलने वाला है। ये सृष्टि वापस सुखमय शांतिमय दुनिया, इस सृष्टि पर, भारत भूमि पर स्वर्ग, गोल्डन एज वर्ल्ड, स्वर्णिमय दुनिया और बहश्त, जिसको हम जन्नत कहते हैं, बहश्त कहते हैं, पैराडाइज कहते हैं, हेवन कहते हैं, ऐसी दुनिया वापस इस सृष्टि पर आएगी जहाँ हम सब आ जाएंगे और हम सब, कोई किसी से लड़ेगा नहीं, कोई वहाँ पर बीमार नहीं होगा, कोई हॉस्पिटल नहीं होगा, कोई डॉक्टर नहीं होगा, कोई कोर्ट नहीं होगा, कोई जेल नहीं होगा। हम सब एक सद्भावना से, प्रेम प्यार से सब मिलके जुलके कुटुंब जैसा रहना, यही परमात्मा का सच्चा ज्ञान ऐसी जीवन दे रहा है और दिया है। सो हम सब मिलके एक जैसे 5 फिंगर्स अलग अलग साइज़ की हैं, लेकिन कोई चीज़ पकड़ना है तो छोटा है, वो बोलेगा बड़ा है तो काम नहीं होगा। लेकिन हम जब सब मिल जाते हैं तो अगर लड्डू उठाना है तो 5 को मिलना है, तब हम लड्डू को उठा के मुख में डाल सकते हैं। ऐसे हम भले अनेक अनेक मत वाले हैं, लेकिन फिर भी हमें एक बनना है, तभी हमारे लाइफ में सच्ची सुख शांति को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी ब्रह्मा कुमारीज मेडिटेशन सेंटर जो ओपन टू ऑल है, जो सबके लिए है और सबको सुख शांति देने का एक ही मार्ग परमात्मा द्वारा सिखाया जा रहा है। सो आप सबका भी वेलकम है। और हम 6 मार्च को वुमेंस डे सेलिब्रेट कर रहे। नारी शक्ति, नारी में एक बहुत ग्रेट शक्ति है, वो सहन करने की शक्ति है, एडजस्टमेंट की शक्ति है। जिस घर में माँ बहन है वहाँ का घर सदा सुखी, क्योंकि उस घर में माँ बहन के अंदर सच्ची एडजस्टमेंट पावर रहता है, सुख शांति से परिवार को चलाने की शक्ति रहता है। तो परमात्मा ने देखा कि नारी के अंदर बहुत गुण है, बहुत पावर्स है, वो सहन करने का पावर है, एडजस्ट करने का पावर है, परिस्थिति को बहुत अच्छी तरह से मोल्ड करने का पावर है। तो ये पावर्स जो नारी के अंदर है, वो नारी को उसका सदुपयोग करना है, उसको बेस्ट यूज़ में लगाना है, उसको कभी भी नेगेटिव रूप में नहीं लेके जाना है। आज हर परिवार क्यों बिखर रहा है? हर घर की बहू बेटी के समान है। तो जैसे बेटी अपने माँ बाप को देखती है, वैसे हर बहू भी बेटी के जैसा अपने सास ससुर को इतना सम्मान से, इतना रेस्पेक्ट से देखेंगे तो सास ससुर को भी जब बेटी का फीलिंग दिखेगा तो ये हर परिवार सुखी बन जाएगा। हर घर से झगड़े, अशांति, आइसोलेटेड होना, मिलके जुलके नहीं रहना, ये सब ख़त्म हो जाएगा और हर परिवार सुखी रहना, हर परिवार स्वर्ग जैसा रहना। उसके लिए नारी को अपने अंदर की शक्तियों को पहचानना है और उस शक्तियों को बहुत विश्व कल्याण की सेवा में लगाना है। तो 6 मार्च को वुमेंस डे के ऊपर हम लोग बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। ये प्रोग्राम हम गटकेश्वर से आगे बीबी नगर के पहले महादेवपुर विलेज के वहाँ पर साइलेंस रिट्रीट सेंटर में कर रहे 10:30 to 12:30। सो आप सभी भी वहाँ पर वेलकम है, जहाँ पर कैसे हम कम्युनिटी में कैसे आना है, ये सब टॉपिक्स के ऊपर हम सब बहुत अच्छी तरह इसका लाभ ले सकते हैं। थैंक यू। ओम शांति। आपका डिजिग्नेशन क्या है? जी, हम ब्रह्मा कुमारी मेडिटेशन सेंटर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से हम 45 ईयर से जुड़े हुए हैं।
हम बचपन से जब हम 10th स्टैंडर्ड में थे तभी हमको ये परमात्मा का ईश्वरीय ज्ञान हमारे क्लासमेट से मिला था। तो हमने तब भी एक क्षण के अंदर हमको लगा ये तो बहुत सत्य ज्ञान है, ये तो रियल नॉलेज है, ये तो रियल रास्ता है। तो जीवन को परिवर्तन करने के लिए जो मनुष्य की सर्च है कि हमें पीस चाहिए, हमको लाइफ में सत्यता चाहिए, वो सत्यता पाने का यही एक श्रेष्ठ मार्ग है। इस मार्ग के पास आइए, इस मार्ग पे चलिए और इस सत्य ज्ञान को आप भी सुनिए, आप भी इसको जीवन में फॉलो कीजिए। देखिए कुछ दिनों में, कुछ महीनों में आपके जीवन में बहुत बड़ी टर्निंग पॉइंट आ सकती है। आप बहुत दुखों से, टेंशन से, चिंताओं से, नेगेटिविटी से, वीकनेसेस से, आपके जो भी अंदर की इम्प्योरिटीज़ है उन सब से आप ओवरकम हो जाएंगे। आप उन सब को विजयी बन जाएंगे। आप कभी भी किसी के नेगेटिविटी के अंडर प्रेशर नहीं आएंगे। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका उस ईश्वरीय शक्ति में विश्वास बढ़ेगा और परमात्मा का रियल प्यार, परमात्मा का ज्ञान आपको बहुत लाइफ के अंदर इतनी बेनिफिट्स देगा। डेली प्रैक्टिकल आपको लगेगा कि हमारा लाइफ बहुत श्रेष्ठ बन रहा है। हमारे लाइफ में हम सिर्फ सुन रहे नहीं हैं, लेकिन हमारे लाइफ में रियली परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। हम बहुत खुद का भी कल्याण और विश्व के कल्याण के काम आ रहे। मनुष्य माना लाइफ क्या होता है? इंसान एक ऐसी लाइफ है जो खुद भी जीना, दूसरों के लिए भी कुछ करना। खुद ही जी के चले गए तो वो तो पशु पंछी भी खुद जी के चले जाते हैं, लेकिन मनुष्य माना खुद भी जीना और सबके काम आना, सारी लाइफ में सारे विश्व की कल्याण करना, सबका भला करना, यही हमारा मोटो है। तो हम बचपन से इस स्पिरिचुअल पैथ में हमको सेकंड में क्लिक हो गया कि यही सत्यता है, यही परमात्मा का सही रास्ता है, यही परमात्मा सबका उद्धार करने वाला है और यही सच्चा गीता का भगवान हम सारे विश्व का भला करने के लिए आ चुके हैं। तो आप सभी भी इसको सुनिए, इसको समझिए, इसको टाइम दीजिए और प्रैक्टिकल इसका प्रैक्टिस कीजिए। तो आपके లైఫ్ का టర్నింగ్ పాయింట్। ఇక్కడ మా సంస్థలో ఉన్న అందరు దీదీలు పాల్గొంటున్నారు. సో అందరికీ మేము సన్మానం చేస్తున్నాము. ఎంతో గొప్పగా మనము విశ్వవ్యాప్తంగా ఉమెన్స్ డే ఎన్నో ఆర్గనైజేషన్స్ చేస్తున్నారు. ఈ ఆర్గనైజేషన్ ఏంటి అంటే ఉమెన్స్ లీడింగ్ ఆర్గనైజేషన్. సో ఎంతో ప్రోత్సాహం కలిగిస్తుంది. ఎంతోమంది వాళ్ళ అనుభవాలు మాతో షేర్ చేసుకుంటారు. ఉమెన్స్ ఎవరైతే ఈ ఆర్గనైజేషన్లో జాయిన్ అయ్యి మెడిటేషన్ నేర్చుకున్నారో. సో కాబట్టి అందరూ కూడా ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్కి అటెండ్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాము. సో మార్చ్ 6th రోజు మేము ఉమెన్స్ డే చేస్తున్నాము మహాదేవ్పూర్ బీబీ నగర్లో సైలెన్స్ రిట్రీట్ సెంటర్లో. శాంతి D9 టీవీ తెలుగు వాళ్ళు ఎన్నో ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళు కూడా సోషల్ సర్వీస్ చేస్తున్నారు. సో మా సంస్థ నుంచి D9 టీవీ తెలుగు వాళ్ళకి చాలా చాలా థ్యాంక్స్.